Good morning, students. How are you? I hope all you are fine and well, and your days are going very well. Today I am going to teach you about what is the importance of holiday, how the children they are always, eager to get holidays. Now this day you are getting a long holidays, isn't it? So I think you may not get such kind of holidays, and so almost 4 months it is going to be. Even it is online classes, but there is no burden to go school. So today's chapter is 1.2 Monday morning. This is for 7th class communicative English. I found most of the 7th class students are searching my video lecture, and I had rarely 2 or 3 video lectures. So that was mostly viewed. That's very amazing, So my other video, especially I focused to 10th class, 12th class, 9th class, and upper classes. But rather than 7th class students have watched more than them. Okay, so that is why I thought I would not miss you, and I would not make you hopeless. So that I want to complete unit number 1. Okay, there are 4 chapters in unit number 1, but today my video lecture will be unit 1.2, unit 1.3 and unit 1.4. Rest of the day after we may look unit 1.1, because unit 1.1 this is not a story. This is something, this is not a story, or this is not a poem. That's just an introduction about keeping fit, how exercise, regarding of exercise and regarding of health care. So that I will discuss you that chapter later. So when we think about children, so most of the children, when there is time for going to school, they want to make excuse. So some of them say that I am not feeling well, I have fever, I have stomachache, I have headache. Different excuse we are showing to our parents to avoid the school. Like the same way, there is a boy whose name is Tom. Okay, he wanted to make foolish to his aunt, and when there is Sunday, he was very happy, and he was very very happy, and also he was doing more things, had a lot of enthusiasm. But when there is Monday, so there is something problem in his mind and heart. जब मंडे आता है तब कुछ ना कुछ उसको होने लगता है. कभी पेट दर्द होने लगता है, कभी सिर दर्द होने लगता है, तो कभी हाथ पर दर्द होने लगता है, तो कभी बुखार चढ़ जाता है. कुछ ना कुछ होता है. बच्चे अक्सर इस तरह का बहाना बहुत बनाते हैं स्कूल से छूटने के लिए. लेकिन आज कल तो लॉकडाउन का पीरियड है, और हमको लंबा 3 महीने से लेकर लगभग एंड ऑफ मार्च से लेकर के अभी तक हमको हॉलीडे मिल रहा है. यद्यपि कुछ स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, फिर भी सभी हमें स्कूल जाने का कोई बर्डन नहीं है, हमें स्कूल जाने का कोई चिंता नहीं है. हम सिर्फ अपने घर में बैठ कर के थोड़ी देर पढ़ाई करते हैं और थोड़ा बहुत होमवर्क करके हम निपटा लेते हैं. तो ये एक लड़का है, जिस लड़का का नाम टॉम है. देयर इज अ बॉय हुज नेम इज टॉम. सो मैं पूरा एक्सप्लेन यदि करूँ तो बहुत टाइम लगेगा. इट विल बी टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम. So that I will read and translate only, because if fully I will lecture you in English, some students are unable to understand. अगर मैं पूरा का पूरा ही लेक्चर इंग्लिश में दे दूँ तो some students वो इतना क्या नहीं कर पाएंगे और समझ नहीं पाएंगे.
तो मैं 7th क्लास का इसीलिए बना रहा हूँ कि एक दो वीडियो में ऐसे बना के छोड़ दिया था ट्रायल के लिए, लेकिन देखा तो मेरा सबसे ज़्यादा व्यू जो है वही 7th क्लास में ही आ रहे हैं। एक्चुअली मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स भी बहुत जो पढ़ाकू है, बहुत इंटरेस्टेड है, नए नए चीज़ को जानने का रुचि बहुत रखते हैं, और उसके साथ यूट्यूब में और अदर्स भी और काफ़ी सर्च भी करे थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि बच्चों को निराश नहीं किया जाए, और ठीक है बच्चे को देख रहे हैं, अगर आप देखोगे तो मुझे बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से कहता हूँ, यदि कोई नए से आज पहली बार इस चैनल में आकर के यूट्यूब मेरा लेक्चर को देख रहा है तो सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाने के लिए बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ क्योंकि मेरा जितना वीडियो है उतने सब्सक्राइबर नहीं है, और ये बात आप भी जानते हो कि आजकल चैनल बहुत है, इतने सब्सक्राइबर होना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मेरा ज्ञान सबके पास पहुँचे। दैट आई विश माई विजडम एंड नॉलेज दैट शुड बी स्प्रेड एवरीवेयर and to every children. If you are newly watching my video, don't forget to subscribe and don't forget to put your finger onto the bell icon. So let's begin. Monday morning found Tom stir miserable, and Monday morning always found him so, because it began another week's स्लो सफरिंग एट स्कूल। मंडे मॉर्निंग जब आता है टॉम के लिए, और तभी कुछ न कुछ उसके जीवन में होता है, क्योंकि जब मंडे आता है तो उसे लगता है कि और एक हफ्ता अब मुझे क्या करना पड़ेगा, स्कूल में जाकर करके सफरिंग उठाना पड़ेगा। He generally began that day with wishing he had no intervening holiday, since it made the going into captivity and fetters again so much more odious. तो मंडे मॉर्निंग आता है तो उसको वही चिंता खाई जाता है कि मुझे फिर से स्कूल जाना है, फिर से मुझे क्लासरूम में जा कर के मतलब बंदी होकर के रहना है, अगर वगैरह इस प्रकार का सोच उसको आता है। Tom lay thinking. Now presently it occurred to him that he wished he was sick, then he could stay home from school. सुबह जब होता है मंडे का, तब उसके अंदर एक इच्छा ऐसा जाहिर होता है कि काश मैं बीमार होता तो और थोड़ी देर में घर पे रह जाता, और आज का दिन जो है मुझे स्कूल में जाना नहीं पड़ता। तो बच्चों, आपके पास अगर ये बुक है, ये कम्युनिकेटिव इंग्लिश होली फेथ पब्लिकेशन का 7th क्लास का है ना, और पेज नंबर 10 और 9 है, पहले जो मैंने दिया था 9 है, और जब मैं पढ़ाता हूँ तो आप बुक खोल करके बैठे। सो यू नीड टू ओपन योर बुक। सो टॉम यहाँ पे क्या सोचता है कि काश ऐसा होता है कि मैं बीमार होता तो आज क्या होता कि मैं और कुछ समय के लिए यानी मेरा स्कूल से मेरा छुटकारा मिल जाता। ही कन्फर्स्ड हिज सिस्टम, नो अलाइनमेंट वाज फाउंड एंड ही इन्वेस्टिगेटेड अगेन। दिस टाइम ही थॉट देयर वर colicky or symptoms, and he began to encourage them with considerable hope, but soon they grow feeble and presently died wholly away. तो कुछ ना कुछ महसूस करने के लिए वो चाह रहा था, मतलब कोई सा भी एक बीमार का लक्षण उसको पता चल जाए, कोई सा भी एक बीमार के बारे में उसको नॉलेज मिल जाए, या ऐसा शरीर में कुछ हो जाए, कैसे दर्द होना, कैसे बुखार होना, या तो कुछ भी होना, है ना, ये ऐसा मन में सोचता है। लेकिन अब वो पूरा फीलिंग करने के लिए काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन इस तरह का कोई फीलिंग नहीं होता है। थोड़ा बहुत तो होने जैसा तो लग रहा था, लेकिन बाद में चल कर के वो भी उसका शरीर से गायब हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है,
Tom reflected further. Suddenly, he discovered something. One of his upper front teeth was loose. This was lucky. He was about to begin to run as a starter, as he called it, but then it occurred to him that if he came into court with that argument, his aunt would pull it out and that would hurt. So he thought he would hold that tooth in a reserve for the present and seek further. उसके बाद क्या होता है कि अचानक से उसको याद आ जाता है कि अरे मेरा तो एक दांत है जो क्या होता है हिल रहा है. My teeth is my teeth are losing and it is shaking. So there is an excuse. यहाँ पे मुझे एक बहाना मिल गया. बट ही फियर्स, लेकिन वो डरता है इस बात को कहने के लिए. इफ यू वुड गो टू द कोर्ट ऑफ आंट डेफिनेटली शी वुड पुल डाउन. अगर वो ये बहाना लेकर के अपनी आंटी के पास चला जाएगा तो डेफिनेटली आंटी क्या करेगी कि वो दांत को उखाड़ करके निकालेगी. सो उसी डर से वो क्या करता है कि इस मैटर को क्या करता है वो रिजर्व रख देता है, क्योंकि ये तो कभी ना कभी दिखेगा जरूर, है ना. ये तो कभी ना कभी दिखेगा, किसी न किसी स्तर पे ये दिखेगा, ये कहीं भी नहीं जाएगा. तो आगे के दिनों में आगे की हॉलीडे बहाना के लिए वो इस मैटर को क्या करता है रिजर्व करके रखता है, इस मैटर को छुपा करके रखता है. नथिंग अफेक्टेड फॉर सम लिटिल टाइम, बट देन सडनली ही रिमेंबर्ड ही हैड अ सोर टॉय. तो अब कुछ नहीं है, लेकिन उसको याद आया कि उसका जो टो है उसमें थोड़ा दर्द हो रहा है. वेरी ईगरली ही ड्रॉ इट फ्रॉम अंडर द सीट एंड हेल्ड इट ऑफ फॉर इंस्पेक्शन. ही डिड नॉट नो द नेसेसरी सिम्टम्स, बट इट सीम्ड क्वाइट worthwhile to change it. So he fell to groaning with considerable spirit. फिर क्या करता है, उसको लगता है कि उसका पैर में एक घाव हो गया है. अब उसमें से मतलब वो कुछ इन्फेक्शन के कारण, ठीक है ना. अब वो अपना अपना टो को जो है लेकर के बैठ जाता है और गुराने लगता है ना. बहुत ही एक कंसिडरेबल स्पिरिट के साथ, यानी एक ग्रहणयोग्य आत्मा के साथ, क्योंकि अब वो ऐसा कहेगा तो शायद आंटी अब समझ जाएगी कि बच्चा का तबीयत ठीक नहीं है, अब उसको क्या नहीं किया जाए, स्कूल जाने नहीं दिया जाए. बट सी स्लेप्ट ऑन अनकॉन्शियस. और यहाँ पे शीत उसका एक भाई है, ठीक है ना, वो भी क्या कर रखा है, बिल्कुल अनकॉन्शियस होकर के सो रखा है. ट्रॉम गोन्ड लाउडर ही fancied or he was really feeling pain in the toe, not a result from शीत. वो ऐसा चिल्ला रहा था, ऐसा गुरा रहा था, और जैसे कि मान लो उसको बहुत दर्द हो रहा है. he was groaning, है ना, like he was getting a lot of pain. okay, but there was no any result from शीत. लेकिन शीत की तरफ से कोई भी रिजल्ट यहाँ पर नहीं आता है. टॉम वॉज पेंटिंग विथ हिज एक्सट्यून्स बाय दिस टाइम. ही टुक ए रेस्ट एंड देन swallowed himself up and fetched a succession of admirable groans. थोड़ी देर के लिए गूं 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 हुआ, फिर थोड़ी देर के लिए चुप बैठ गया. बैठने के बाद फिर थोड़ा सा ऐसे किया, ठीक है ना, थोड़ा सा ऐसा किया. ऐसा करने के बाद फिर से रोना चालू कर दिया. कुछ बच्चे होते हैं ना, गूं गूं करके रोते हैं, फिर थोड़ी बहुत थकने के बाद फिर वो निगलने लगते हैं, फिर उसके बाद रोना चालू करते हैं. लाइक द सेम वे टॉम इज ऑल्सो डूइंग एट द सेम थिंग. बट हियर इज शीत, one who is his cousin, and he was sleeping with very nicely, and he was sleeping with very, he was getting very sound sleep. Nothing happens to him.
सिद्ध स्नोर्ड ऑन, और सिद्ध तो इस समय क्या कर रहा है, स्नोरिंग कर रहा है। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्नोरिंग? द स्लीप टाइम वी डू लाइक दैट, है ना। द स्लीप टाइम हम इस प्रकार का जो आवाज़ करते हैं, इस प्रकार का आवाज़ निकलता है ना, इसी को ही स्नोर्ड कहा जाता है। टॉम वाज aggravated, he said, Sid, Sid, and shook him. This course worked well, and Tom began to groan again. Sid yawed and stretched, then brought himself up on his elbow with a snort and began to start at Tom. Tom went on groaning. सो वो बार बार सिप को हिला रहा है, बार बार सिप को उठाने की कोशिश कर रहा है। टाइम टू टाइम ही वॉज ट्राइंग टू बैक अप सिप एंड ही वॉज ट्राइंग टू ब्रेक अप हिज स्लीप, बट देयर वाज नो आंसर, सो ही स्टार्टेड टू क्राइंग। टॉम से टॉम, नो रिस्पॉन्स हियर टॉम, टॉम वाज इज द मैटर टॉम, कोई भी रिप्लाई नहीं है, कोई भी जवाब नहीं है। टॉम मोर्न आउट, टॉम इसी प्रकार से मतलब कई समय तक रोने जैसा बहाना कर रहा है। ओ डोंट शीत, डोंट जगल मी, वाई, व्हाट द मैटर टॉम, आई मस्ट कॉल आंटी। नो नेवर माइंड, इट विल बी ओवर बाय एंड बाय, मे बी डोंट कॉल एनीबडी। तो अभी ओ नो, ओ डोंट सिद्ध, डोंट चॉक मी, तो सिद्ध इस प्रकार कहता है कि मुझे मत उठा, मुझे मत उठाओ। टॉम कहता है कि मैं आंटी को बोल दूंगा, है ना। तो फिर आवाज़ वहाँ से आता है कि नहीं नहीं ऐसा मत करो। बट आई मस्ट, आई डोंट ग्रोन सो टॉम, इट इज़ आवफुल, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन दिस वे। तो सिद्ध कहता है कि ये बहुत आवफुल है, तो कितने समय तक आप ऐसे करते रहोगे। आवर्स, आउच, ओ डोंट स्टेयर सो सिद्ध, यू विल किल मी, है ना। मैं घंटे भर ऐसा मतलब करते आ रहा हूँ और आगे भी ऐसा ही करता रहूँगा, तब क्या तुम मेरे को मारोगे। टॉम, वाई डोंट यू वेक मी सूनर, तो क्या आपने क्यों मुझे जल्दी नहीं उठाया टॉम। ओ टॉम, डोंट इट मेक्स माई फ्लेश क्रोयल टू हियर यू। टॉम, व्हाट इज़ द मैटर। ओ टॉम, मैंने तुमको सुन नहीं पाया, मैं बहुत गहरी नींद में सो गया था। अब बताओ क्या हो गया तुमको। आई फॉरगिव यू एवरीथिंग सिद्ध, गॉन, एवरीथिंग यू हैव एवर डन टू मी व्हेन आई एम गॉन। सिद्ध, तुमने मेरे साथ जो भी किया है वो सभी को लेकर के मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, ठीक है ना, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। ओ टॉम, यू एंड डाइंग आर यू। डोंट टॉम, आई फॉरगिव एवरीबडी सिद्ध, अगॉन टेल मी। सो सिद्ध एंड सिद्ध, यू गिव माई कैट विथ वन आई टू द गर्ल विथ गोल्डन हेयर एंड टेल हर। सो इसी प्रकार ये दोनों का घर पे कुछ मतलब छोटा मोटा कुछ बात सिद्ध ने टॉम का कुछ कर लिया, उसका जो मतलब जो टॉम मतलब जो कैट टॉय से उसका आँख लेकर के और किसी में डाल दिया। ऐसा है कि छोटा मोटा शिकायत है, और ये शिकायत मैं आंटी को नहीं कहूँगा, हैं। बट सिद्ध had snatched his cloth and gone. Tom was now suffering it reality so handsomely was his imagination working, and his groan had gathered quite a genuine tone. Sid flew downstairs and said, "Oh, Aunt Polly, come, Tom dying." Dying? Yes, Auntie, don't wait, come quick. Rubbish, I don't believe it. तो उसके बाद ये दोनों के बीच में थोड़ा बातचीत होता है। बातचीत होने के बाद तुरंत क्या होता है कि सिद्ध जो है डाउनस्टेयर में चला जाता है, नीचे चला जाता है, और नीचे जाकर के आंटी को कहता है कि आंटी जल्दी आ पाओ, जल्दी आ पाओ,
क्योंकि टॉम जो है अब बहुत परेशान उठा रहा है। बट सी लेकिन आंटी कहती है ऐसा क्या हो गया, मैं विश्वास नहीं करती, ठीक है ना। बट सी फ्लैट ऑफ स्टेयर नेवरथलेस विद सीड and Mary at her head, her face grew white and her lip trembled when she reached the beside the gasped out, "You Tom, Tom, what is the matter with you?" फिर उसके बाद आंटी जो है ना मैरी के साथ आ जाती है। मैरी कौन है? मैरी भी आंटी के साथ, जैसे टॉम सीध आंटी के साथ रहते हैं, ठीक ऐसे ही मैरी भी आंटी के साथ रह रही है। अब मैरी के साथ आंटी आती है और तभी क्या होता है कि ये बहुत मतलब घबरा जाता है जब वो आंटी को देखता है। ओ आंटी, व्हाट इज द मैटर विथ यू, व्हाट इज द मैटर विथ यू चाइल्ड। आंटी पूछती है कि बेटा आपके साथ क्या हो गया। ओ आंटी, माई शोर टो मोटिफाइड, मेरे जो टो में जो मतलब एक छोटा सा मतलब जख्म हो गया था वो मुझे ज़्यादा दर्द कर रहा है। द ओल्ड लेडी स्नैक डाउन इनटू अ चेयर एंड laughed a little, then cried a little, then did both together, then restored her and she said, "Tom, what a turn you gave me. Now you shut off the nonsense and climb out of this." फिर थोड़ा आंटी मुस्कुराती है ना। मुस्कुराने के बाद वहाँ पर आंटी थोड़ा चिल्लाती है और बाद में क्या करती है आंटी, दोनों चीज़ एक साथ कर देती है, चिल्लाती है और बोलती है कि क्या बहाना बना रखा है तू, आप तुरंत वहाँ से उठ करके आ जाओ। द गोन ceased and the pain vanished from the toe. The boy felt a little foolish and he said, अब जैसे आंटी का ये दहाड़ता हुआ आवाज़ को सुन लिया और सुनने के बाद उसका सारा दर्द जो है क्या हो गया, गायब हो गया। फिर वो अपने आप को कहता है, आंट पुले, इट seemed mortified and it hurt so much that I never minded my tooth at all. तभी तभी मन में वो कहता है कि मैंने तो अपनी टूथ के बारे में सोचा ही नहीं, है ना। मैं तो सिर्फ पैर के दर्द के बारे में बताया, मैंने अपने टूथ के बारे में सोचा ही नहीं। सो योर टूथ इंडीड, व्हाट इज द मैटर विथ योर टूथ। तब जैसे वो कहता है कि मेरे टूथ में भी ऐसा प्रॉब्लम है, तभी आंटी कहती है कि तुम्हारा टूथ के साथ क्या प्रॉब्लम हो गया। वन ऑफ देम्स लूज एंड इट एक परफेक्टली awful। तो मेरे जितने भी टीथ हैं उनमें से एक जो है वो क्या हो रहा है, लूज हो गया, वो हिल रहा है। सो देर नाउ डोंट बिगिन दैट ग्रोनिंग अगेन, ओपन योर माउथ वेल, योर टूथ इज लूज बट यू आर नॉट गोइंग टू डाई। अबाउट दैट Mary get me a silk thread and a chalk of fire out of the kitchen। तो वो आंटी कहती है कि तुम्हारा टीथ सिर्फ हिल रहा है, उसके चलते तुम मरने नहीं जा रहे हो। तुरंत आंटी मैरी को कहती है, मैरी जाओ जल्दी एक सिल्क थ्रेड लेके आओ और एक चंक ऑफ फायर, है ना, किचन से लेकर के आ जाओ। ओ प्लीज़ आंटी, डोंट पुल इट आउट, said Tom. It doesn't hurt anymore. Please don't, auntie. I don't want to stay home from school. फिर उसके बाद वो मतलब वो कहता है कि आंटी आंटी ऐसा मत करो मेरे साथ, नहीं नहीं, सारा दर्द को मैं संभाल लूँगा, मैं घर पे नहीं रहूँगा, मैं तो स्कूल चला जाऊँगा। इतना कहने के बावजूद भी, ओ यू डोंट शो ऑल दिस रॉ was because you thought you would get to stay home from school and go fishing. Tom, Tom, I love you so and seem to try every way you can to break my old heart with your utter genuineness. तो उसके बाद वो कहता है कि
फिर उसके बाद उसको कहता है कि तू ऐसा बहाना बना करके घर में रहना चाहता है ना, ऐसा करके तू घर पर रहना चाहता है, तो ऐसा नहीं हो सकता, और घर पे रहेगा और फिशिंग करने के लिए चला जाएगा, है ना। और मतलब ये जो बिहेवियर है ये क्या करता है, मुझे सहन नहीं होता, मेरे इस बुजुर्ग की उम्र में, है ना, और मुझे और भी परेशान मत करो। बाय दिस टाइम द डेंटल इंस्ट्रूमेंट वर रेडी। The old lady made one end of the silk thread first to Tom's tooth with a rope and tied the other to the bedpost. Then she seized the chunk of wire and suddenly thrust it almost into the boy's face. The tooth hung dangling by the bedpost now. फिर जैसे ऐसे बात कह रही थी और तभी मैरी लेकर के सब पहुंच जाती है ना, थोड़ा फायर अप चंक और साथ ही साथ थ्रेड लेके आती है। तो आंटी क्या करती है, टूथ का जो ये जो बेड पोस्ट का जो लास्ट का हिस्सा है उसमें बांधती है, फिर आँख में उसको क्या कर देती है, चौंक कर देती है और उसको निकाल देती है। तो पूरा का पूरा जो टूथ है ये मतलब वो जो थोड़ा थोड़ा हिल रहा था ये जोर से बाहर आता है। बट ऑल ट्रायल्स ब्रिंग देयर compensation. Tom went to school after breakfast. He was the envy of every boy he met because the gap in the upper row of teeth enabled him to expectorate in a new and admirable way. He gathered quite a following of lads or interested in the exhibition. There was one who felt jealous of Tom now glory and said, "That isn't anything to spit like." Tom sour grapes, said another one. तो अभी उसको ऐसे ऊपर का जो राव है दांत खाली हो गया है ना, और अब इसी दशा में वो स्कूल में जाएगा और मन में सोचता है कि अब बच्चे मुझे देखेंगे और मेरी थोड़ी बहुत तो मजाक करेंगे, है ना, ऐसा वो मन में सोचता है। सच में वो जाता है तो बच्चे थोड़े इधर उधर से उसको बोलते हैं। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि हम यदि कोई बहाना बनाएंगे स्कूल जाने के लिए तो उसका असर उल्टा ही होगा। कभी कभी घर पे बहाना बना करके रह जाते हैं, लेकिन अब जब कोई बहाना ही बन जाता है, झूठी बहाना बनता है, तो वो हमारा ऊपर ही गलत असर पड़ेगा। और ये सेम बात टॉम के जीवन में हुआ। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया। एंड अगेन आई से प्लीज़ सब्सक्राइब एंड पुट योर फिंगर or your thumb onto the bell icon. So if you have any question, okay, if you have any question, so you can comment. Before someday somebody comment me what is the question number of 6, I gave the answer like the same way. If I have time, so definitely I will give the answer also. So you have to wait patiently or see this video again and again and try to understand. If line wise I will explain or line wise if I will translate, it will take a lot of time. Mainly you have to know that Tom was a lazy boy, one who was not willing to go to school. So that is why he was making excuse day by day. But one day his excuse that brought a punishment for him, and with that punishment he went to his school, and some children might be moved to him. That is the main theme of this video. Thank you. May God bless you. Stay blessed.